Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 8th of July. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. If you are new here students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. In this video students, we will be talking about National Biobank. Then we will be talking about Tamil Nadu, that became the India's first state to implement predictive death model for TB patients, that is your tuberculosis patients. Then World's Gini Index we will be talking about, and Colombia and Uzbekistan have joined BRICS-backed New Development Bank as their new member. All these things and many more will be discussed here, so stay tuned with us till the end. Also students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. That helps you prepare for your competitive exam in a more interesting way. Let's start with national affairs students. Dr. Jitendra Singh has inaugurated National Biobank at CSIR's arm IGIB for personalized healthcare. See, if any individual wants to go for a personalized healthcare, then a proper database should be with that person, so that the doctors can assess it, right? What are the medical histories that person had, or the family history of medical treatments, right? Everything should be with the doctor, so that they can provide them with the personalized care, that how his body is reacting and what are the changes, or what are the food that he should eat, what are the treatment that he should go according to his body composition, right? So this National Biobank has been launched, and this state of the art facility, correct, is basically to support the personalized treatment plans while having a wide range of diversity. Also, we see that in India there is large geography, ethnicity, and social economic background. So a data of 10,000 individuals across India's diverse geography will be collected here, and further it will be promoted. Also, this initiative draws inspiration from the UK's Biobank, and this will support early diagnosis of the disease, targeted therapies, and research on the gene environment interactions. Correct? Take a note of it. Moving on. Next is Tamil Nadu became India's first state to implement predictive death model for tuberculosis patients, right? That is TB patients, right? So this TB, tuberculosis, this is a communicable disease. It affects your lungs, right? And in order to predict serious patients, right, those patients that are at high risk, these patients will be identified through this predictive death model for the TB patients, and those ill patients will be given the priority treatment or emergency treatments, right? They will be given probability for early admissions to the hospitals. This system has been developed by Indian Council of Medical Research, that is ICMR's arm, National Institute of Epidemiology in Chennai, Tamil Nadu. Data set here is that this model was, or this AI model, or we can also say, or large language model, it was trained on 56,000 TB patients. Moving on to international affairs, World Bank's Gini Index has been released here, and our country ranks world's 4th most equal society in the world. For the past 2011 to 2023, we have also seen that the poverty level has declined in India significantly, and India has performed well as compared to other countries such as China, USA, or UK, right? Also, this report highlighted that 171 million people came out of poverty from 2011 to 2023 in India. If we talk about World Bank, Ajay Banga is the president here. Headquarters is in Washington DC, and it was established in 1944. Next, students, Colombia and Uzbekistan, they have joined BRICS Bank, New Development Bank, as their new member, and there are total 11 nations now in the New Development Bank. Correct? This is also another interesting development that you should take a note of it. Then this announcement was made by Dilma Rousseff, the president of New Development Bank. Next comes India. Our country became world's 4th largest biofuel consumer in 2024, and I repeat again,
India, our country, became world's fourth largest biofuel consumer in 2024, which is the largest consumer as well as the producer. It is United States of America. Right here you can see this was the 74th edition of the Statistical Review of the World Energy released by London UK based Energy Institute in collaboration with Kearney and KPMG, reported that India became the world's fourth largest biofuel consumer in 2024, surpassing China for the second consecutive year. Also, the India's biofuel consumption rose by 40% year on year, and we have surpassed China also, where their growth was 18%. As I mentioned, and we have seen that it is United States of America that is the largest biofuel producer as well as consumer. Moving on, next is appointments and resignation. Suriname elected Jennifer Simons as the first female president. Take a note of this, the first female president of Suriname, as you can see here in the picture, Jennifer Simons. She will be sworn in on 16th of July in 2025. Next is Sanjog Gupta appointed as the Chief Executive Officer of ICC, that is International Cricket Council, right? So Sanjog Gupta, and he will be succeeding whom? He will be succeeding Geoff Aldrich of USA. He will become the 7th Chief Executive Officer in the history of ICC. Then next is related to sports. McLaren's Lando Norris, as you can see him in the picture, he has won the F1 British Grand Prix. He is from UK and he has won the F1 Qatar or F1 Qatar British Airways British GP, that is F1 British Grand Prix. It was Lando Norris' 8th career win and his 4th victory of the season. Lando Norris on first, Oscar Piastri on second, and Nico Hülkenberg on third position. Next is Magnus Carlsen. As you can see him in the picture, he is the world's #1 chess player. And he has won Super United Rapid and Blitz Croatia 2025, and D. Gugesh of India secured the third position. And this marks his 10th victory in the 12th Grand Chess Tour Rapid and Blitz event. Next is Neeraj Chopra. Neeraj Chopra is Indian player from Haryana, the Golden Boy, has won gold in the inaugural edition of the Neeraj Chopra Classic 2025 that was held in Bengaluru. Take a note of this. Neeraj Chopra achieved his best throw of 86.16 meter on third attempt after initial foul and a throw of 82.99 meter in the second throw. Next is obituary. Former Member of Parliament and Member of Legislative Assembly Kunwar Anand Singh has recently passed away at the age of 87 in UP. He was born in 1934 and he ascended as king in 1964 after his father Raja Raghvendra Pratap Singh's death, and then he entered politics there and he was widely known as the UP Tiger. Next is important days. World Rural Development Day observed on 6th of July. This day is observed across the globe to raise awareness among everyone about the role and responsibility for collaborative actions and efforts on integrated rural development as outlined in the Sustainable Development Goals. Next is World Zoonosis Day observed on 6th of July. Zoonoses are basically those, we can say zoonotic disease. Zoonoses are those viruses that are transmitted from animals to humans, right? And zoonotic disease are those diseases that are carried from these zoonose viruses from animals to humans. So to raise awareness about it and also to promote research and development in this field, as COVID-19 was one such zoonotic virus that impacted the whole world, right? So such situation does not arise again. For the same reason, this World Zoonosis Disease Day is observed on 6th of July. Then next is World Kishwali Language Day is observed on 7th of July. Kishwali basically is a famous language, and this day highlights the role of this Kishwali tribe, that is one of the most widely used languages of the African linguistic family. This promotes this language. It is a symbol of peace, unity and cultural exchange, and this year it was the 4th edition of this day that was observed. There is also a theme here, Kishwali, a bridge for cultural diversity and intercultural dialogue. First time this day was observed in the year 2020. Next, state news students. UP government to launch 2 new pilgrimage assistance schemes.
right? So which are these schemes we are talking about? It is your Buddh Tirath Darshan Yojana first, and second Panch Takht Yatra Yojana. This is the second. So UP government, they will be launching these two new pilgrimage assistance schemes, that is Buddh Tirath Darshan Yojana and Panch Takht Yatra Yojana for Buddhist and Sikh devotees. Under the two schemes, a minimum of 10,000 rupees will be provided as an assistance to each pilgrimage. Then next, Haryana to develop Asia's largest jungle safari in Aravalli Hills. This will be a quite important and interesting development for the real estate sector also of Gurugram, as these Aravalli Hills, they are located near Gurugram, Haryana, and that too Dwarka Expressway that we discussed. Then it is located near SPR, and this in this Aravalli Hill also there is a leopard trail there, right? That is a very famous spot for the tourists there. It is a tourist attraction, and this jungle safari, this will be covering an area of 10,000 acres that will be spanning 6,000 acres in Gurugram, Haryana, and 4,000 acres it is located in New Haryana, right? And the focus here will be on preserving variety of animals, birds, and natural biodiversity. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part. In April, the Ministry of Panchayati Raj, they have released the first Panchayat Advancement Index, PAI. It is a baseline report that is talking about the sustainable development goals that are being followed by the panchayats at the grassroots level, right? The initiatives they are taking, the development we are seeing in those panchayats, right? And the action plan they are promoting. Question asked is, identify the state that is not among the top 5 performers in this particular report. So among the following, it is Gujarat that secured the first position, then Telangana, it is on second, Tripura is on third position, Maharashtra is on fourth position, UP is on fifth position, and Tamil Nadu is not among the top 5 here. Next, which of the following airports is not in the list of the top 5 airports announced at the Skytrax World Airports Award 2025 held in Madrid, Spain? So, Hong Kong International Airport is not in the list of the top 5 airports here announced, right? Singapore Changi Airport on the first position, Doha Hamad International Airport on the second position, and Tokyo Haneda Airport on the third position. Next, Moody's Analytics, this is a subsidiary of Moody Corporation. They have revised the India's GDP growth forecast for CY25, that is calendar 25, down to what percentage? So they have reduced the growth here to 6.1%. Earlier they were projecting it to grow by 6.4%, but now we have seen a reduction of almost 30 basis points. Next, as per the report released in April by Niti Aayog, India's hand and power tools trade is a part of the global market currently that is valued at $100 billion. Question asked here is that the global market is projected to expand to dash by 2035. So here this hands and tool and India's hands and power tool trade, it is that is $100 billion currently valued. It is expected that it will be $150 billion by the year 2030 in the next 10 years. And India can achieve a 25 billion plus dollar trade in exports in the next 10 years. Next, what is the, I correct myself, I think I have mentioned wrong. It is not $150 billion, but it will be $190 billion. Option 3 is right here, right? Next, what is the estimated total value of India's export that includes your both merchandise and service for FY25 as per the Ministry of Commerce and Industry released in April 2025. So what is the estimated total value of India's export? It is $820.93 billion. If we talk about the merchandise export for FY25, it stood at $437.42 billion, right? Similarly, this is export we are talking about, merchandise export. And if we talk about the merchandise import, it stood at $720.24 billion. Next, mention the country that introduced Zircon hypersonic missile in the March 2025, capable of traveling at 9 Mach at an altitude of 20 km. 9 Mach is 9 times the speed of sound, right? So which country introduced this Zircon? It was introduced by Russia. This Zircon is also known as 3M22 Zircon. Next,
Identify the aerospace company that collaborated with Infostellar of Japan in March 25 to integrate a 3.8 meter SNX band ground station antenna in Hyderabad into Infostellar's Stellar Station platform. So, which is that aerospace company? It is Dhruva Aerospace Private Limited. Next, which company in India recently signed a $253.6 million agreement with Hanwha Aerospace Company Limited of South Korea to export components of K9 Vajra T to the Indian Army? K9 Vajra T, this is a tank. Right, so its component will be delivered to the Indian Army. Which company has partnered here and signed this agreement with Hanwha Aerospace Company worth $253.6 million? It is L&T Tubro, that is Larsen and Tubro Limited. Next, in April, Indian Army and DRDO they successfully carried out 4 flight tests of the Army version of the medium-range surface-to-air missile system from the coast of Odisha. Next, which Indian private aerospace manufacturer conducted the static fire test of Kalam 100 engine, the third stage of the Vikram 1 launch vehicle in Nagpur, Maharashtra? It is Skyroot Aerospace Private Limited. Right, take a note of this. And this Vikram 1, it is India's first private commercial orbital launch vehicle designed to carry up to 480 kilograms of payload to a 500 kilometer into the low Earth orbit. And it has been named after Dr. Vikram Sarabhai, the father of India's space program. Next is identify the name of the launch vehicle for which Solar Defense and Aerospace Limited, that is a subsidiary of Solar Industries India Limited, had successfully developed the propulsion system including the igniter and third stage rocket motor. So name that launch vehicle. It is Vikram 1 satellite. Next, mention the Russian aircraft which carried NASA's astronaut Jonathan Yong-Jeon Kim and Roscosmos cosmonaut Sergei Viktorovich and Alexei Vitalyevich to the International Space Station in April 2025. So recently the rocket that was used here is Soyuz MS-27. This is the rocket that was used here. Next, name the long-range glide bomb successfully tested by DRDO using the Sukhoi 30 Mark 1 fighter jet in April 2025. It is Gaurav. Right, this is the long-range glide bomb, the name of which is Gaurav. Next, mention the state where DRDO successfully conducted the field trial of the land version of the vehicle-mounted Mark 2A laser-directed energy weapon. So, which is that state? It is Andhra Pradesh. Take a note of it. And with this, our country, India, we became the 4th country to have such kind of a system after USA, Russia, and China. Next, pop star Katy Perry and 5 other women were launched into space and returned to Earth using the New Shepard rocket. Name the company that carried out this mission. It is Blue Origin that carried out this mission. So total of 6 women went into space through their first space trip with only women, right? Next, identify the company that in April 2025 successfully conducted preliminary sea trials of 651 kilowatt water jet propulsion system for the Indian Navy under TDF, that is Technology Development Fund scheme of the DRDO. So which is that company? It is L&T, Larsens and Tubro. Next, Betawall Technology Company Limited based in Dash unveiled a nuclear powered battery named BV100 capable of operating for up to 50 years on a single charge. So Betawall Technology Company Limited, that is based in China, right? They have unveiled a nuclear powered battery that has been named BV100 which is capable of operating up to 50 years on a single charge. Next, in April 2025, Google, they have launched the 7th generation AI name chip, that is Ironwood. It is designed to accelerate AI applications involving rapid calculations to generate responses in AI powered systems. Next, in April, India commemorated the golden jubilee of the first satellite Aryabhatta, marking 50 years since its launch on 19th of April 1975. At that time, satellite was launched abroad Dash rocket from Kapustin Yar in Russia with assistance from Soviet Union, that is USSR. So question asked is that at the time this satellite, right, Aryabhatta was launched using Cosmos 3M rocket and it was launched from Russia.
right? And it was 1975 when this Aryabhatta was launched on 19th of April. Next, in April, ISRO they successfully developed and tested an indigenously made nozzle divergent using satellite alloy for the fourth stage of which launch vehicle? It is PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. Next, in April, which country launched the fourth indigenous military spy satellite using Falcon 9 rocket of SpaceX from Florida, USA, to strengthen their independent surveillance capabilities? It is South Korea. Next, in April, India dispatched the second batch of supersonic cruise missiles to Philippines under $375 million deal signed in 2022. Name the Indian-Russian joint venture company involved in this agreement. It is BrahMos Aerospace Private Limited. And also remember, Philippines is the first nation to buy these BrahMos supersonic cruise missiles from India, right? And this deal was signed worth $375 million. Next, China has achieved a milestone in their internet infrastructure by launching the world's first 10G broadband network in its Sunan County in Hebei province. Next is identify the INS, that is Indian naval ship that successfully test fired the medium range surface to air missile also known as Barak 8 in the Arabian Sea. It is INS Surat. Next, which organization conducted 1000-second ground test of an active cooled scramjet subscale combustor in April, marking a critical advancement in India's hypersonic cruise missile development program? Which is this INS, or which organization conducted it? It was conducted by DRDO, Defense Research and Development Organization. Right? Take a note of it. Next, name the second generation geostationary orbit data relay satellite launched by China in April using the Long March 3B rocket from the Shenzhen Satellite Launch Center in southwest China. It is Tianlin 2. This is the name of the second generation geostationary orbit satellite. Next, in April, Amazon Incorporation they successfully launched the first 27 satellites of its Project Kuiper broadband internet constellation from Florida. See this Project Kuiper, it is of Amazon, right? And Starlink is the project of. Next is our homework section, students. First, where will be the University of Liverpool opening up in India? Second question, name the university that will be opening up in Greater Noida. Third question, then tell me recently which city and state will be hosting the 2026 Asian Weightlifting Championship? Fourth question, who became the first player to score 800 club goals? And fifth question, students, when do we observe World Schizophrenia Awareness Day, as well as give me the theme of this World Schizophrenia Awareness Week. Give me the theme also here. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 8 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। आज की वीडियो में हम नेशनल बायो बैंक की बात करेंगे जो कि जितेंद्र सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया पर्सनलाइज हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। देन तमिलनाडु इंडिया की पहली स्टेट बनी टू इम्प्लीमेंट प्रिडिक्टिव डाटा डेथ मॉडल फॉर ट्यूबरक्लोसिस टीबी के पेशेंट्स के लिए। देन वर्ल्ड बैंक के जिन इंडेक्स की बात करेंगे एंड कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान ने ब्रिक्स बैक न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया एज द न्यू मेंबर। ऑल दिस थिंग्स एंड मेनी मोर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ। एंड स्टूडेंट्स, हम सुबह 5 बजे ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं जो आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below.
स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया नेशनल बायो बैंक एट द CSIR's IGIB, जो कि है इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक्स एंड इंटरजनरेटिव बायोलॉजी, जो कि न्यू दिल्ली में, राइट। पर्सनल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए कि इंडिविजुअल के बेसिस पे उनकी जो हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट, उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा सके इंडिविजुअल्स को। यहाँ पे हम देखेंगे 10,000 से भी ज़्यादा डाटा बेसिस पे इसको ट्रेन किया जाएगा, इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को और इस पर्टिकुलर मॉडल को, ताकि एंड मीनिंगफुल आउटपुट मिल सके एंड डॉक्टर्स पर्सनलाइज हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें इंडिविजुअल्स को बेस्ड ऑन देयर जोग्राफी, एथिसिनिटी एंड इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सिमिलर टाइप का एक आपको बायो बैंक देखने को मिलता है यूके में, एंड ये आपका बेसिकली बायो बैंक जो रहेगा एक अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज में हेल्प करेगा, टारगेटेड थेरेपीज में काम करेगा एंड जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन के ऊपर रिसर्च करने में इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। फिर तमिलनाडु बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट प्रिडिक्टिव डाटा मॉडल फॉर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स। ट्यूबरक्लोसिस आपके लंग्स को इफेक्ट करती है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, राइट। एंड ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स कितनी सीवियरिटी के हैं, कौन कितना ज़्यादा इल है एंड जो ज़्यादा सीरियस होते हैं उनको यहाँ पे पहले, एंड जिनकी बेसिकली जो इलनेस सीरियसनेस ज़्यादा है उनको यहाँ पे अर्ली एडमिशन टू हॉस्पिटल प्रोवाइड कराने का ये काम करेंगे, क्योंकि अगर ये पहले ही मॉडल प्रेडिक्ट कर ले कि इस पेशेंट की हालत और ज़्यादा गंभीर हो सकती है, तो पहले ही हम उस पेशेंट को जो रिक्वायर्ड मेडिकेशन है वो प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि उसकी हालत खराब ना हो, राइट। एंड ये ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया जिससे पेशेंट्स को सीवियरिटी पेशेंट्स को बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसको डेवलप किया गया है ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के साथ, एंड यहाँ पे 56,000 से भी ज़्यादा TB पेशेंट्स का डाटा रिकॉर्ड किया गया है। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। वर्ल्ड बैंक के जिन इंडेक्स की बात करेंगे, इंडिया रैंक करता है वर्ल्ड का 4th मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड। हम चाइना, UK, USA से भी बेटर यहाँ पे रैंक करते हैं, एंड इससे हमें पता लगता है कि हम अपने जो देश में है वो इक्वालिटी के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं। इवन अगर हम एक डाटा देखें कि 2011 से लेके 2023 का, इसके अंदर हमने देखा कि 171 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी में से लिफ्ट किया गया इंडिया के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जिनी इंडेक्स को रिलीज किया गया, इंडिया 4th पोजीशन पे आ जाता है। अजय बंगा यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे, वॉशिंगटन DC यहाँ का हेडक्वार्टर रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान, इन्होंने ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया एज द न्यू मेंबर, एंड 11 नेशंस अभी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड ब्रिक्स कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है इनको, एंड ग्रो करने में हेल्प किया जाता है। इवन इंडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में फंडिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक के थ्रू देखने को मिलती है। नेक्स्ट आते हैं फिर। इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर इन 2024, एंड USA ने यहाँ पे टॉप किया लिस्ट को विद द प्रोड्यूसर्स। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी एज वेल एज कंज्यूमर्स की कैटेगरी में, राइट, तो इन दोनों कैटेगरी में USA ने टॉप किया, एंड इंडिया 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर बन गया है इन वर्ल्ड का। टॉप पर कौन है? USA, करेक्ट। यहीं पे अगर हम देखें, ये 74वां एडिशन था स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी का, जो कि लंदन UK बेस्ड एनर्जी इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की गई इन कोलैबोरेशन विद कर्नी एंड KPMG। एंड इंडिया का जो बायोफ्यूल कंजप्शन है, इट हैज एक्सपेंडेड एट अ CAGR ऑफ 31.8%। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। सुरीनेम इन्होंने इलेक्ट किया जेनिफर साइमंस को एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं फिर संजोग गुप्ता को अपॉइंट किया गया CEO ऑफ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं संजोग गुप्ता रहेंगे। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे जॉफ ऑल्ड्रिस्को ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड ये 7वें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएंगे ICC के। इसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। मैकलेरन के ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने भी F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ये इनकी चौथी विक्ट्री रहेगी 2025 सीजन की, एंड 8वीं करियर विक्ट्री रहेगी। ये फर्स्ट पोजीशन पे है लैंडो नॉरिस, राइट, ये मैकलेरन के लिए ड्राइव करते हैं, एंड ये UK से बिलोंग करते हैं। सेकंड पोजीशन पर ऑस्कर पिएस्ट्री मैकलेरन के लिए ही ड्राइव करते हैं, ये UK से। एंड थर्ड पोजीशन पे निको हल्केनबर्ग, ये जर्मनी से हैं, जो थर्ड पोजीशन सिक्योर की उन्होंने। इसके बाद आ जाते हैं फिर चेस से रिलेटेड मैग्नस कार्लसन, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं। इन्होंने अभी सुपर यूनाइटेड रैपिड्स एंड ब्लिट्स क्रोशिया 2025 को जीता, एंड जहां पर हमारे इंडिया के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश इनकी थर्ड पोजीशन रही यहाँ पर, राइट। एंड दिस मार्क्ड हिज 10th विक्ट्री इन द 12th ग्रैंड चेस टूर रैपिड एंड ब्लिट्स इवेंट एंड 6th कॉन्जिक्यूटिव टूर्नामेंट जो 2025 में हुआ।
इसके बाद आ जाते हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता इन द इनॉग्रल एडिशन, मतलब पहला एडिशन था ये नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में हमें देखने को मिला था। एंड नीरज चोपड़ा ने वहाँ पे गोल्ड मेडल यहाँ पे सिक्योर करा, फर्स्ट पोजीशन। इनका थ्रो कितना था, इनका थ्रो था यहाँ पर 86.16 मीटर का बेस्ट थ्रो था, थर्ड राउंड में इनको ये अचीव हुआ। इसके बाद ऑबिट्री पर आ जाते हैं। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कुंवर आनंद सिंह, इनका रिसेंटली निधन हो गया है इन लखनऊ यूपी एट द एज ऑफ 87। ये इनको यूपी का बोला जाता था कि ये यूपी टाइगर है, राइट। एंड अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने यहाँ पे अपने पॉलिटिक्स में कदम रखे। फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे 6 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि जो रूरल डेवलपमेंट में सबका रोल है उसको बढ़ावा देने के लिए, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के ऊपर काम करने के लिए, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को साथ साथ बढ़ते हुए डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देने की यहाँ पे बात की गई। इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे, ये 6 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। जूनोसिस वो वायरस होते हैं जो कि आपके एनिमल से ट्रांसमिट होते हैं, कहाँ पे, एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होते हैं, राइट, उनको जूनोस वायरस कहते हैं। एंड जूनोटिक डिजीज क्या हो गई, जो डिजीज ह्यूमन एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो। जैसे अगर हम बात करें कोविड-19 एक जूनोटिक डिजीज थी, राइट। तो सिमिलरली ऐसे जूनोसिस वायरस के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम कर सकें, ताकि हम पहले से प्रिपेयर रह सकें, कभी भी ऐसी सिचुएशन अगर हमें फिर से देखने को मिलती है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड किशिवाली लैंग्वेज डे, ये कल्चर को प्रमोट करने के लिए, पीस को प्रमोट करने के लिए, यूनिटी को प्रमोट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड किशवाली लैंग्वेज बेसिकली एक अफ्रीकन रीजन की ये लैंग्वेज है जो कि काफ़ी फेमस है, एंड इससे एक एकता के बारे में बढ़ावा दिया जाता है, राइट, सब मिलकर कल्चरल को ग्रो कर सके। तो वर्ल्ड किशवाली लैंग्वेज डे 7 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन रहेगा, मतलब 2025 में हमने चौथी बार इसको ऑब्जर्व किया 7 जुलाई को। एंड इसकी एक थीम भी याद रखेंगे, थीम है किशवाली अ ब्रिज फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंटरकल्चरल डायलॉग। फिर आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर स्टूडेंट्स। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 2 नए पिलग्रिमेज असिस्टेंस स्कीम को, एक है बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना को, एंड दूसरा है पंच तखत यात्रा योजना। ये बुद्धिस्ट एंड सिक्स डिवोटीज के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अंडर दिस स्कीम अ मिनिमम ऑफ 10,000 रुपीज विल बी प्रोवाइडेड एज अ असिस्टेंस टू ईच पिलग्रिम। फिर आ जाते हैं हरियाणा, ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है स्टूडेंट्स, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड बूस्ट प्रोवाइड करेगी हरियाणा में रियल एस्टेट को, राइट, स्पेशली इन द गुरुग्राम एरिया। इससे क्या होगा आप देखेंगे, अरावली हिल्स कहाँ पर हैं, ये आपके हरियाणा से, गुरुग्राम हरियाणा से स्टार्ट हो जाते हैं, राइट, होते दिल्ली में भी हैं, लेकिन वहाँ से मेन एरिया जहाँ पे आपका लेपर्ड ट्रेल आ जाता है, लेपर्ड ट्रेल आ जाता है आपका SPR रोड के पास, राइट, जो कि कनेक्ट होता है द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो ये एरिया में लेपर्ड ट्रेल से आपके यहाँ पे एक बहुत ही एक अमेजिंग टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिलता है, जहाँ पर लोग जाते हैं एज अ वीकेंड गेटवे या फिर इवनिंग वॉक्स पर शाम को, बिकॉज पहाड़ों का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं पर हम एशिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी देखने को मिलेंगे। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि ये एशिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी यहाँ पे बनने वाला है। इससे टूरिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बूम देखने को हमें मिलेगा, राइट। एंड ये एक कंजर्वेशन एरिया होगा, जहाँ पर हम देखेंगे एनिमल्स को कंजर्व किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो आपकी लर्निंग में बेनिफिशियल रहेगा। Next is our homework section, students. First, where will be the University of Liverpool opening up in India? Second question, name the university that will be opening up in Greater Noida. Third question, then tell me recently which city and state will be hosting the 2026 Asian Weightlifting Championship. Fourth question, who became the first player to score 800 club goals? And fifth question, students, when do we observe World Schizophrenia Awareness Day, as well as give me the theme of this World Schizophrenia Awareness Week. Give me the theme also here. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. Mention the name of the city that is not ranked among the top 5 cities according to their data center capacity under construction as of end 2024. राइट, कशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। तो मेंशन दैट सिटी जो कि टॉप 5 सिटीज़ में नहीं आती है, मुंबई 6ठे पोजीशन पे आ जाती है इस इंडेक्स में, राइट, इन द टर्म्स ऑफ डाटा सेंटर्स। अगर हम लिस्ट देखें उन सिटीज़ की जो कि टॉप कर रही है, जैसे सबसे पहले आ जाता है टॉप पर आपकी वर्जीनिया फर्स्ट, देन एटलांटा सेकंड, कोलंबस थर्ड, डैलस
फोर्थ फिनिक्स, फिफ्थ और छठे पे इंडिया। ये बाकी सारी यूएसए की हैं, छठे पे आ जाती है मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेबी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन द इशू एंड लिस्टिंग ऑफ द ईएसजी डेट सिक्योरिटीज। व्हाट आर द टाइप ऑफ बॉन्ड्स दैट दिस फ्रेमवर्क स्पेशली गवर्नेंस। तो ये कौन से बॉन्ड्स को गवर्न करता है यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो आपके ग्रीन बॉन्ड्स को छोड़ के सभी को ये टारगेट करता है। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इन जून। 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया। सुमन के बेरी को ये सक्सीड करेंगे। एस महेंद्र देव को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता इंडोनेशिया ओपन का। तो वीमेन सिंगल टाइटल एनसी यंग। एंड अगर मैं मेंस कैटेगरी की पूछूं तो मेंस कैटेगरी में किन्होंने जीता, वो है एंडर्स एंड टॉनसन। राइट, ये वर्ल्ड के मेंस कैटेगरी में नंबर 3 के प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 3, एंड डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने यूएफए नेशनल लीग को जीत लिया बाय डिफीटिंग स्पेन इन द फाइनल्स। तो पोर्चुगल ने जीत लिया है, 5-3 से जीता है। राइट, फुटबॉल का इवेंट है यूएफए एंड स्पेन की टीम को हरा के पोर्चुगल ने जीत लिया। फाइनल इवेंट जर्मनी में हुआ था, म्यूनिच जर्मनी में, एंड ये 4th एडिशन था यूएफए का। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी दैट हैज अनाउंस्ड और दैट वाज अनाउंस्ड एज द फाउंडिंग पार्टनर ऑफ द LA 28 ओलंपिक गेम्स जून 2025 में, लॉस एंजलिस 28 के ओलंपिक गेम्स के लिए। राइट, तो वो है होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड। इसके बाद आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंजेस नॉट अमंग द टॉप 5 इन द वर्ल्ड बाय मार्केट कैप एज ऑफ 2025। तो वो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूके। इंडियन आर्मी ने अभी 22वें एडिशन ऑफ एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। पूछा जा रहा है ये 22वां एडिशन एक्सरसाइज का खान क्वेस्ट का है। ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? ये एक्सरसाइज मंगोलिया में हमें देखने को मिली। राइट, 14 से 28 जून तक ये एक्सरसाइज हुई थी, 22वां एडिशन था। एंड यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, 40 पर्सनल का यहाँ पे रेजिमेंट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। नेक्स्ट, आरबीआई इन्होंने अलाउ किया सेपरेट ट्रेनिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटीज, ये स्ट्राइप्स इन स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। राइट, तो अभी रिसेंटली मिनिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है फॉर फिक्स कूपन बॉन्ड्स जो कि इशू किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा टू क्वालिफाई फॉर स्ट्राइप्स। तो 1000 करोड़ रुपए के वो मिनिमम रहने चाहिए टू क्वालिफाई देम फॉर स्ट्राइप्स। ठीक है, स्ट्राइप्स बेसिकली ये आपके रिप्रेजेंट ईदर द प्रिंसिपल और ईच पेमेंट ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, ये वो सिक्योरिटीज होती हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल और ईच इंटरेस्ट पेमेंट किसी बॉन्ड का, जो अलाउ करते हैं टू बी ट्रेडेड देम सेपरेटली इन द मार्केट। वो सेपरेटली ट्रेड किए जा सकते हैं मार्केट में। इनकी मैच्योरिटी यहाँ पे 14 ईयर्स बताई जा रही है। नेक्स्ट, गम्बोशव ये अपॉइंट किए गए 34th प्राइम मिनिस्टर कहाँ के? तो ये 34th प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं मंगोलिया के। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने डिफीट किया साउथ अफ्रीका को टू विन द आईसीसी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ये 3rd एडिशन था इस एडिशन का। राइट, किन्होंने जीत लिया है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ने। राइट, साउथ अफ्रीका ने डिफीट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। आई करेक्ट माई सेल्फ, साउथ अफ्रीका यहाँ पे विनर रही है इस इवेंट की। इन्होंने किन को हराया फाइनल में? ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने फाइनल्स में हराया। राइट, एंड ये 3rd एडिशन था आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो लंदन इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं कैनेडियन ग्रैंड पिक्स की। ये 63rd एडिशन था कैनेडियन ग्रैंड पिक्स का। किसके द्वारा जीता गया? जॉर्ज रसल के द्वारा जीता गया। ये 2025 की इनकी पहली विक्ट्री है। ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं एंड ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल विंड डे? ग्लोबल विंड डे 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम पूछी जा रही है आपसे, तो थीम है डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। नेक्स्ट, अभी किन 2 कंट्रीज ने क्वालिफाई कर दिया फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम? तो उज्बेकिस्तान एंड जॉर्डन के द्वारा इन दोनों कंट्रीज की फुटबॉल टीम ने क्वालिफाई किया फॉर द फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेल टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेशन इंडिया के इन जून, सक्सीडिंग आलोक ओहरी। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पर? मनीष गुप्ता अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेल टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 3rd यूनाइटेड नेशंस ओशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नाइस, फ्रांस।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन आपसे करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। चाइना के ली जुआ, इनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिस UNCO3 बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल टू ओवरऑल मॉनिटर द प्रिपरेशंस। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 113 सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑफ कॉन्फ्रेंस, जो कि हाईएस्ट डिसीजन बॉडी मेकिंग है ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, जो जून में हुई थी। तो कहाँ पर हुआ था, वेयर वॉज द 113 सेशन ऑफ दिस इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिला, तो ये हुआ था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने ज्वाइन किया ब्रिक्स को एज द 10th पार्टनर कंट्री। तो वियतनाम यहाँ पे 10th पार्टनर कंट्री के तौर पे वियतनाम ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इन्होंने डिक्लेयर किया 2026 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वीमेन फार्मर टू एक्नॉलेज द क्रिटिकल रोल ऑफ वीमेन इन एग्रीकल्चर एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस दे फेस ग्लोबली। क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने इनिशिएट किया दिस रेजोल्यूशन को दैट लेड टू द डिक्लेरेशन बाय UNGA, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। एंड 100 कंट्री से भी ज़्यादा ने इस डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल्स 5-day ऑफिशियल विजिट टू स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन। तो यहाँ पर अगर हम इनकी विजिट की बात करें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, किनको फॉर्मली अवार्ड दिया गया नाइटहुड बाय किंग चार्ल्स III इन जून, उनकी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन के लिए टू स्पोर्ट्स एंड चैरिटेबल कॉजेज। तो यह है डेविड बेकम, जो फॉर्मर फुटबॉलर है, इनको यहाँ पे नाइटहुड से सम्मानित किया गया। टेक अ नोट ऑफ दिस। इन्हीं के अलावा गैरी ओल्डमैन एंड रॉजर डॉल्ट्रे, इन दोनों को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द सैटेलाइट जो लॉन्च की गई, सैटेलाइट दैट CNSA लॉन्च, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, जून 2025 में, यूजिंग लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट फ्रॉम Jiuquan सैटेलाइट लॉन्च सेंटर टू मॉनिटर नेचुरल डिजास्टर्स यूजिंग द एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी। तो उस सैटेलाइट का नाम पूछा जा रहा है, वो है Zhenghe 102। नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर करने का इसका काम रहेगा। नेक्स्ट, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि एक डिफेंस PSU है, इन्होंने लॉन्च किया 5th फास्ट पेट्रोल वेसल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड इन जून 2025 अंडर अ 473 करोड़ प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई द इंडिजीनियसली बिल्ट वेसल हेयर, तो उस वेसल का नाम क्या रहेगा, वो है अचल। टेक अ नोट ऑफ इट। 27 नॉट्स तक इसकी स्पीड यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट इंडियन स्पॉन्सर टीम जिन्होंने हिस्ट्री बना दी बाय विनिंग द रैपिड सेक्शन ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ द फाइट रैपिड एंड ब्लिट्स टीम चैंपियनशिप, जो कि लंदन में हमें देखने को मिला था। तो ये MGD1 ये टीम का नाम रहेगा, याद रखेंगे। ये पहली इंडियन स्पॉन्सर टीम है जिन्होंने रैपिड सेक्शन को जीत लिया है। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका होमवर्क ले लो यहाँ पे स्टूडेंट्स कि आप मुझे बताओ टॉप 5 कौन सी हैं विद देयर मार्केट कैप। नेक्स्ट, इन जून गोवा की ओजोफेनी को भी GI टैग मिला, इसमें से सही ऑप्शन बताना है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा कह रहा है कि GI वैलिड फॉर 5 years एंड एक बार इसका टाइम खत्म होने के बाद इसको नॉन रिन्यूएबल होता है इसका ये रजिस्ट्रेशन। तो नहीं, एक तो ये 10 साल के लिए होता है और 10 साल बाद फिर से आप इसको रिन्यू करा सकते हो फॉर द फर्दर 10 years। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम, इन्होंने 6ठी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी चेयर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग NIIF फंड्स वर रिव्यू ड्यूरिंग द मीटिंग, तो सभी फंड्स को यहाँ पे रिव्यू किया गया था इस मीटिंग के दौरान। Next, identify the initiative that was recently launched by our Home Minister Amit Shah to promote the use of Indian languages in the official work and reduce administrative dependence on foreign languages। तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनको प्रमोट करने के लिए डे टू डे कामों में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ये पार्टनर किया गया। राइट, पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव, उस इनिशिएटिव का नाम बताओ, तो वो है भारतीय भाषा अनुभाग। राइट, इसको CDSE सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, CDAC के द्वारा इसको बनाया गया है, ताकि लैंग्वेज एक बैरियर ना रह सके। एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी एंड डिसीजन मेकिंग और फ्रूटफुल होती हुई हमें दिखेगी। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पे सभी ये 5 आपकी लैंग्वेज हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट, मेंशन द फॉरेन बैंक जिन्होंने वो पहला बैंक बन गया टू लिस्ट ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ
2.5 बिलियन श्रीलंकन रुपीस ऑन द NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज एट जिफ सिटी गांधीनगर गुजरात। तो DFCC बैंक PLC ये वो पहला बैंक बन गया जिन्होंने ये ग्रीन बॉन्ड्स को लिस्ट किया ऑफ 2.5 बिलियन श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट 7 इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसमें से 5 मैन एंड 2 वीमेन थे इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम क्लास फॉर 2024। अब 122 टोटल हॉल ऑफ फेम अवार्डी हो गए हैं इस लिस्ट में। इंडियन से कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। टेक अ नोट ऑफ इट। देन आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ इंडियन स्क्वॉश प्लेयर जिन्होंने 2 ऑनर्स जीते। कौन है वो है अनाहत सिंह, 17 साल की हैं। इनके द्वारा 2 ऑनर्स यहाँ पे जीते गए या फिर 2 चीज़ों से सम्मानित किया गया इनको। एक है वीमेंस चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन एंड दूसरा है वीमेंस यंग प्लेयर ऑफ द सीजन। ये स्क्वॉश प्लेयर है, राइट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ अजय नारायण। तो किनको अपॉइंट किया गया? T. रवि शंकर। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया सुदर्शन वेन्यू को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो TVS मोटर कंपनी लिमिटेड, इनको यहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किया सुदर्शन वेन्यू को एज देयर न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जून के महीने में। सर रॉल्फ स्पेथ, राइट, इनको सक्सीड करेंगे ये। नेक्स्ट, डैश अनाउंस देयर प्लान टू लॉन्च इंडिया का पहला थिंकिंग डाटा कंप्यूट सैटेलाइट एंड जो कि एक AI पावर्ड सैटेलाइट रहेगी। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा ऑफ इसरो। तो ये इसरो की है। तो TM2 स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ये कंपनी है, इनके द्वारा लॉन्च की जाएगी ये पहली थिंकिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट दुर्गेश आरण्या जूलॉजिकल पार्क को डेवलप किया जाएगा 100 करोड़ की लागत से। तो हिमाचल प्रदेश में इसको डेवलप किया जाएगा। फिर आ जाते हैं उस कंपनी का नाम बताओ दैट रिक्लेम द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन जून विद अ मार्केट कैप ऑफ $3.45 ट्रिलियन। तो वो है एनवीडिया कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है ये। नेक्स्ट, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया 2 मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स को वर्थ 6,405 करोड़ रुपीस। फिर आ जाते हैं वेयर विल इंडिया की पहली ई वेस्ट इको पार्क, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क को स्टैब्लिश किया जाएगा 150 करोड़ की लागत से एंड 325 करोड़ रुपया का ऑपरेशनल बजट रहेगा। तो दिल्ली में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। इंडिया का 9% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम दिल्ली से जनरेट करते हैं एंड इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिक वेस्ट का ग्लोबली। नेक्स्ट, what is the rank India's rank in the 19th edition of Global Gender Gap Report released by World Economic Forum? 131वें पोजीशन पे आ जाता है इंडिया, राइट, ग्लोबली। एंड आइसलैंड ने यहाँ पे सिक्योर किया टॉप पोजीशन। फिर है इन जून किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF ट्रैकिंग द इंडिया इंटरनेट इंडेक्स। मतलब इंडिया की जो इंटरनेट कंपनीज हैं जिसमें आपके सेक्टर्स ई-कॉमर्स, फिनटेक, डिजिटल पेमेंट्स आ गए, उनको ट्रैक करेगा यहाँ पे। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ग्रो म्यूचुअल फंड के द्वारा। एंड ग्रो अपना खुद का भी IPO लॉन्च करने की बात कर रहा है वेरी सून। नेक्स्ट, मेंशन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिन्होंने रिसीव किया शेड्यूल बैंक स्टेटस फ्रॉम RBI एंड ये 50वां कोऑपरेटिव बैंक बन गया इंडिया में टू रिसीव दिस रिकॉग्निशन। ये है विश्वेश्वरा सहकारी बैंक लिमिटेड, ये पुणे महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है। नेक्स्ट, किनको ऑनर किया गया? दोस्तोस्काय स्टार अवार्ड से, जो कि रशिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। एंड ये इनके रोल जो है कल्चरल डायलॉग एंड लिटरेसी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए जो इन्होंने अपना योगदान दिया उसको प्रमोट करने के लिए डे ऑब्जर्व ये उनको सम्मानित किया गया। तो जावेद अख्तर बने, ये इंडिया के लिरिस्ट एंड पोएट हैं, स्टोरी राइटर हैं एंड ये पहले इंडियन बने जिनको यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया रशिया के हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर दोस्तोस्काय स्टार अवार्ड से। किस कंट्री ने अपॉइंट किया बॉलीवुड एक्टर कैटरीना कैफ को एज देयर ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर, ताकि कंट्री का जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जा सके। तो मालदीव्स की यहाँ पे एम्बेसडर बनी है, ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कैटरीना कैफ। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड अहमदाबाद गुजरात में, कौन सा है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट? वो है, क्या नाम रहेगा उस एयरपोर्ट का? एयरपोर्ट है वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Next, in June, India, serving as the Vice President, participated in the second session of the Council of Meeting of Dash, जो कि एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है रिस्पॉन्सिबल फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन। तो वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन, IALA का वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया।
Next, which among the following was recently in June awarded the Commander of the Order of the British Empire for exceptional leadership in retail and consumer sector? तो वो है लीना नेर. नेक्स्ट, ये शनेल ब्रांड की CEO है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ CSB बैंक लिमिटेड 3 साल के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 15 सितंबर. तो आइडेंटिफाई दैट पर्सन, वो है प्रलय मोंडल. नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोल्ड 3.64% स्टेक, जिसमें 3.5 करोड़ आपके शेयर थे. किसको बेचा? टू SBI म्यूचुअल फंड. क्या बेचा? ये शेयर्स किसके हैं? ये हैं एशियन पेंट्स के. किसने बेचा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बेचा और 7,703 करोड़ रुपीस की लागत से बेचा. नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ दैट वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, जिसको सोलर डिफेंस एंड एयरस्पेस लिमिटेड के द्वारा पोखरान राजस्थान में इसको टेस्ट किया गया. इसका नाम है रुद्रास्त्र. फिर आ जाते हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात विजय राम निखिलभाई रमानी. राइट, इनका रिसेंटली निधन हो गया. AI-171 यह भी एक एयर इंडिया का फ्लाइट थी जो कि क्रैश हो गई. काफ़ी सैड न्यूज़ थी स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग यहाँ पे इनकी डेथ हो गई. राइट, एंड ये एक मेडिकल हॉस्टल पे क्रैश किया जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की भी बताया जा रहा है कि जान गई है. राइट, तो इनका रिसेंटली निधन हो गया है. ये फ्लाइट अहमदाबाद गुजरात में जाके लैंड मतलब क्रैश हुई. पूछा गया कि ये कौन से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो ये 16वें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के जिनका भी निधन हो गया. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, आज की वीडियो में 3rd वीक ऑफ जून के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने एस्टेब्लिश किया इंडिया का पहला एग्रीडोम इंडिजिनाइजेशन फैसिलिटी को चेन्नई तमिलनाडु में एस्टेब्लिश किया जाएगा. इसको इनॉग्रेट किया गया कमलेश पासवान जी के द्वारा. राइट, ये कौन सी कंपनी है? ये है गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड. ये भी आपकी चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है. राइट, एंड ये आपका एक टेक स्पेस स्टार्टअप है. इवन एक और चीज़ याद रखेंगे, कमलेश पासवान जी के द्वारा ही 300 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किए गए एंड एक TTT प्रोग्राम लॉन्च किया गया जो कि है ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम ऑफ द गरुड़ा एरोस्पेस. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम ये किस कंपनी का है? ये आपका गरुड़ा एरोस्पेस का है.